Assalamu alaikum first year. Today is our last topic of the chapter number 9, that is energetics of solution. In this topic we are going to read the heat of solution, hydration and hydration energy, hydrates and water of crystallization, hydrolysis, difference between the hydration and hydrolysis. We know what is solution. Solution is the homogeneous mixture of the two or more components. Solution is formed by the interaction between the solute and the solvent particles. In all over the topic, we will only discuss the solution formation of the inorganic or ionic compounds. We know ionic compounds dissolve in water. How? Positive ion is separated from the negative ion in first step, and in the second step, the positive end of the water molecule attracts the negative end, and the negative end of the water molecule attracts the positive end of the solute. In this way, a new interactions are developed between the solute and solvent molecules. Solution formation depends upon the distance between the solute and solvent molecules. If the solute in the first step, solute molecules separate from each other. Similarly, solvent molecules also separate from the other solvent molecules. पहले स्टेप में सल्यूट के मालिक्यूल से दूर होते हैं और सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स के दरमियान में भी डिस्टेंस इंक्रीज होता है क्योंकि नई इंटरेक्शन डेवलप होने जा रही है. दिस स्टेप इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. In second step, new intermolecular forces develop between the solute and solvent molecules. This is an exothermic process. Overall जो dissolution का process है, it may be endothermic or it may be exothermic depending upon the strength of the intermolecular forces. अब जो ओवरऑल जो solution formation का जो process है उसमें जो energy release होती है that is called as heat of solution. Heat of solution, the heat absorbed or released by dissolving a salt in water. For example, यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में जब डिजोल्व करते हैं then it is converted into calcium and chloride ion and the heat of the solution is minus 82.8 kilojoule per mole. Whereas heat of the solution of the ammonium nitrate is plus 25.57 kilojoule per mole. Here we have put negative and positive signs with both of these equations. The heat of the solutions could be exothermic if it has negative sign, and it could be endothermic if it has positive sign. अब ये जो मैग्नीट्यूड है हीट ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, ये मैग्नीट्यूड हमें बताती है strength of the intermolecular forces of the attraction between the components which mix to form a solution. जो स्ट्रेंथ है कंपोनेंट्स की, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कंपोनेंट्स के दरमियान में उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ऑफ द सॉल्यूशन. दो चीज़ें हैं हीट ऑफ द सॉल्यूशन में, एक साइन है और एक मैग्नीट्यूड है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड की जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज प्लस 2.008 किलो जॉल पर मोल. तो यहाँ पे साइन जो है, सिंबल्स जो है दैट इज शोइंग वेदर इट इज एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. तो ये पॉजिटिव साइन है तो ये शो कर रहा है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये जो इसकी मैग्नीट्यूड है प्लस 2.008 किलो जॉल, इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. Our next topic is hydration. Hydration क्या चीज़ है? The process in which water molecules surround and interact with solute ion or molecule is called hydration. ऐसा process जिसमें water के molecule आयंस को जो है सल्यूट के पार्टिकल्स को जो है वो सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, इसको हमने हाइड्रेशन कहना है. और हाइड्रेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हीट ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज़ नॉट द हीट ऑफ द सॉल्यूशन. हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ वो एनर्जी है जो कि जो कि सल्यूट के मालिक्यूल को सराउंड करते वक्त जो एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर होगी, उसको हमने हाइड्रेशन एनर्जी कहना है. तो इसको हम जो है वो प्रॉपर टर्म में डिफाइन करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को. हाइड्रेशन एंथैल्पी
is the change in the enthalpy when 1 mole of the gaseous ion under a standard condition of the 1 bar pressure dissolved in sufficient amount of the water to form a infinitely dilute solution. इसकी डेफिनेशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि 1 मोल होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए आइंस का। दूसरी बात कि 1 बार प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जो सोल्यूशन बने वो इन्फिनिटली डिल्यूट सोल्यूशन हो। इन्फिनिटली डिल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें अगर हम सोल्यूट ऐड करें तो इसमें किसी भी किस्म का कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता, हीट चेंज जो है उसमें किसी भी किस्म का ऑब्जर्व नहीं होता। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं इन्फिनिटली डिल्यूट सोल्यूशन। अब ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस के ऊपर। मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस। किस तरीके से कि अगर जितनी जो है द चार्ज डेंसिटी है इज मोर फॉर द स्मॉलर आयंस, अगर आयन छोटा है, ठीक है, अगर आयन स्मॉल है तो उसकी चार्ज डेंसिटी जाहिर सी बात है ज़्यादा है। तो जितनी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, स्मॉलर आयंस हैव द हायर वैल्यू ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा। So hydration enthalpy is directly proportional to the charge density. Greater the charge density, greater will be the hydration enthalpy. अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखनी है हाइड्रेशन और हीट ऑफ द सोल्यूशन के बेसिकली प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जो डाइसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये किस तरीके से जो है वो प्रोसीड करता है फॉर द आयनिक कंपाउंड। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल ली है पोटाशियम आयोडाइड की। जब हम पोटाशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप प्रोसेस इज द लेटेस्ट ब्रेकेज प्रोसेस। हम फर्स्ट स्टेप को कह सकते हैं इट इज अ लेटेस्ट ब्रेकेज प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज लेटेस्ट एनर्जी। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। इस स्टेप में जो सॉल्वेशन और यू कैन से हाइड्रेशन, इस स्टेप में जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रेशन एनर्जी। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो लेटेस्ट ब्रेकेज है और सेकंड स्टेप जो है वो सॉल्वेशन है। इन दोनों स्टेप्स की जो एनर्जी होगी दैट विल बी द हीट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज आवर लेटेस्ट ब्रेकेज स्टेप। लेटेस्ट इज ब्रोकन इन इट्स एंड इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जाहिर सी बात है अगर आपने किसी चीज को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। The amount of energy needed to separate a crystalline compound into isolated ion or atom is known as latest energy. तो लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन हम यूनिट नंबर 7 में भी जो है बड़ी डिटेल से लेटेस्ट एनर्जी को पढ़ चुके हैं। बोन हैबिट साइकिल में इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका बताया गया है। तो ये वही डेफिनेशन है। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द आयनिक सॉलिड्स इज ऑलवेज हायर देन द मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सेकंड स्टेप में क्या होना है कि हमने हाइड्रेशन एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि आयंस, सोल्यूट के आयंस जो है पोटाशियम आयोडाइड इस वक्त टूट चुका है। पोटाशियम आयोडाइड की ये क्रिस्टल पड़ी थी, इसके जो है वो आयंस अलहदा हो चुके हैं। अब इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में आयोडाइड आयन और पोटाशियम आयन अलहदा अलहदा से जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे। इस स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रेशन एनर्जी एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रेशन और सॉल्वेशन प्रोसेस। In the second step, the ions are brought into the water and get hydrated or solvated. A hydrated ion is attracted by the solvent dipole and energy is released. So this step is exothermic. First process में first step was an endothermic process. Second step जो कि surrounding of the ion है, it is an exothermic process. And the energy given out by this step is known as the hydration energy or solvation energy. यहाँ पे इस प्रोसेस की जो है वो इक्वेशन गिवन है, पोटाशियम और आयोडाइन आयन विच आर सेपरेटेड हीट इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पोटाशियम एंड आयोडाइड दे आर इन द एक्वस फॉर्म, दे हैज बीन सॉल्वेटेड। तो जो अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है? Enthalpy of the solution, the dissolution process is dependent on both the latest enthalpy and hydration enthalpy.
रेजोल्यूशन के प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है लेटेस्ट इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी पे, एंड द इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेशन इंथैल्पी एंड लेटेस्ट इंथैल्पी। ये जो सॉल्यूशन की हीट ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगी, डेल एच ऑफ हाइड्रेशन माइनस डेल एच ऑफ लेटेस्ट। इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो हीट ऑफ सॉल्यूशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Our next topic is hydrates and water of crystallizations. What are hydrates? A hydrate is an ionic compound, usually crystalline, that has water molecule in its solid structure. Solid structure जो है वो होगा, उसके अंदर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप होंगे, तो उसको हमने कहना है ओवरऑल हाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, कैल्शियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिप्सम, दिस इज कॉल्ड एज जिप्सम। हाइड्रेट्स जो है इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं, द क्रिस्टाइन सब्सटेंस विच कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर। नाउ कीप इन माइंड दिस इज केमिकली कंबाइंड water in the definite proportion is called a hydrate. Hydrates are mostly produced when aqueous solution of the soluble salt is evaporated. सोल्यूबल सॉल्ट का अगर हम सोल्यूशन जो है उसको एवेपोरेट करें तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एवेपोरेट नहीं होते, बल्कि सॉल्ट के दरमियान जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। इसको जो है वो हम हाइड्रेट्स कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रेट इज नॉट लिमिटेड टू सॉल्ट्स बट कॉमन विद एसिड्स, बेसिस एंड एलिमेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट्स वाले ही, सिर्फ सॉल्ट ही जो है वो हाइड्रेट्स शो कर सकते हैं, एसिड्स भी हाइड्रेट्स बनाते हैं, बेसिस भी जो है वो हाइड्रेट्स बना सकते हैं। अब इन हाइड्रेट्स एनहाइड्रस कंपाउंड क्या होगा, व्हेन ऑल द हाइड्रेटिंग वाटर इज रिमूव्ड बाय हीट, इट इज कॉल्ड द एनहाइड्रस कंपाउंड। तो अगर हमें जो है वो एनहाइड्रस कंपाउंड का फार्मूला पता है, देन यू कैन डिटरमिन द फार्मूला ऑफ द हाइड्रेट। Percentage composition is based on the amount of the water in the hydrates. Here are the some examples of the hydrates. Copper sulfate dot 5 water. अगर जो है कॉपर सल्फेट जो है अगर वो हाइड्रेट्स की फॉर्म में है तो इसका कलर जो है वो ब्लू होता है, और अगर वो एनहाइड्रस हो जाए तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर वाइट होता है। तो हम बता सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द कलर। तो ये एक बड़ी इसकी जो है वो एक आप कहने के इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि हाइड्रेट्स जो हैं अगर वो उनका कलर, उनके पास वाटर मॉलिक्यूल कितने अमाउंट में है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इनका कलर चेंज होता है, और अगर उनमें से जो है बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएं, एवेपोरेट हो जाएं, तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली निकल सल्फेट जो है वो अगर हेक्सा हाइड्रेट होता है, इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसका कलर जो है वो सी ग्रीन टाइप होता है, और अगर एनहाइड्रस हो तो ये वाइट हो जाता है। सिमिलरली फॉर द कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड जो है इट इज़ हेक्साहाइड्रेट, इट इज़ पिंक इन कलर, और अगर एनहाइड्रस हो तो कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू कलर में भी इस्तेमाल, ब्लू कलर में मौजूद होता है। तो कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये एक बड़ा अच्छा रिजेंट है, लेबोरेटरी रिजेंट है टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। इसको हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं वाटर वेपर्स की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है? अब हाइड्रेट्स के अंदर, हाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं उनको हमने कहना है इट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Those water molecules which combines with the substances as they are crystallized from the aqueous solutions are called the water of crystallization or water of hydrations. Examples हैं इसकी oxalic acid, barium chloride dot 2 water, sodium carbonate dot 10 water which is a washing soda, magnesium chloride dot 6 water, so Na2B4O7 sodium metabolate dot 10 water which is called as the borax. Copper sulfate dot 2 water which is called as gypsum, and magnesium sulfate dot 7 water which is called as Epsom salt, and AlCl3 dot 6 water which is aluminium chloride. Aluminium chloride में भी जो है वो 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद होते हैं। Our last topic is hydrolysis. Hydrolysis is literally means reaction with water. It is a chemical process in which molecule is cleaved, means break into two parts by the addition of the molecule of water. One fragment of the parent molecules gains a hydrogen ion from the additional water molecule and the other group collects the remaining hydroxyl group. अब जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है इसको हम प्रॉपर डिफाइन अगर करें, the chemical breakdown of the compound due to reaction with water is called the hydrolysis. This is different from the hydration. हाइड्रेशन में तो सिर्फ ये था कि आइंस टूटे और वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, इसमें वाटर के साथ जो है वो कोई
केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं हुआ, वाटर जो है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि सोल्यूट के साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी टूटता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, दे इंटरएक्ट विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड दे फॉर्म इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड। तो हाइड्रोलाइसिस जो है ये दो टाइप की होती है, आयनिक हाइड्रोलाइसिस एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोलाइसिस। Ionic hydrolysis क्या है? It occurs when the salt of the weak acids and the weak bases interact with water to give either alkaline or acidic solution. सिंपली कि आयनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो आयनिक कंपाउंड में पर्टिकुलरली सॉल्ट को डिस्कस किया गया है। तो सॉल्ट जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, सॉल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है, तो आया वो सोल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, किस टाइप का है, इसको हमने कहना है आयनिक हाइड्रोलाइसिस। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोलाइसिस क्या है कि जब हम किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अगर उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो उसको हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। इट इज़ मच स्लोअर एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है एंड इट इज़ कैटलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। Salt hydrolysis is our concern in this topic, or you can say ionic hydrolysis. तो जब किसी भी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये सॉल्ट जो है, जो सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड जो है, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पीएच में किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं आता। जबकि अगर जो है हम कुछ सॉल्ट हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वी गेट द एसिडिक सोल्यूशन। While some salt, for example sodium carbonate and the sodium acetate, when they are dissolved in the water we get the basic solution. Now what happens here? ऐसा क्यों होता है कि different salts जो हैं on dissolving in water produce the different type of the solution? First of all we look at the neutral solution of these salts. तो जो डेसोल्यूशन ऑफ द पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पोटाशियम ब्रोमाइड गिव्स द न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर। व्हाई? Because they are not hydrolyzed by water, as these are the salt of the strong acid with strong base. तो मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई थी कि सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो either it could be the process of the hydration or it could be the process of the hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस में जो है वो क्या होना है कि वाटर के मॉलिक्यूल ने भी रिएक्ट करना है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि सिंपली सॉल्ट के मॉलिक्यूल पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो ये वाले जो सॉल्ट है वो क्या है कि सिंपली जो है ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्वेशन का प्रोसेस शो कर देते हैं। तो इसमें जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ उन सॉल्ट के लिए है जो कि बने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड, तो पोटाशियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय द पोटाशियम फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन फ्रॉम द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और क्लोरीन भी जो है HCl भी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। Our next type is acidic solution of the salt. Salts that are derived from the neutralization of the strong acid by a weak base. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट हो जो कि बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से, तो इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द एसिडिक सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड वी ऑल नो इट इज़ अ वेरी वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी वीक बेस। अब यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल पहले ब्रेक डाउन हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल ने प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन तो यहाँ पे अमोनियम आयन के साथ जो है वो अटैच होकर इसने एक वीक बेस प्रोड्यूस कर दी। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फ्री पड़ा है और क्लोराइड आयन भी इधर फ्री पड़ा है। तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन में दे विल कंबाइन टू फॉर्म द HCl एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सोल्यूशन की जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगेन इट इज़ अ वीक बेस
और इसके साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन विच एसोसिएट विद ईच अदर एंड दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एसिड. That's why the pH of the solution is acidic. तो कॉपर सेम केस फॉर दी कॉपर सल्फेट कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. दैट वाई these salts produce the acidic solution. Our next is basic solution of the salt. Salts that are derived from the neutralization of the weak acid by a strong base will always produce the basic solution. For example, sodium acetate. सोडियम एसीटेट जो है वाटर के अंदर जब हम डिजोल्व करते हैं वी गेट दी एसिडिक एसिड. ठीक है, जो सोडियम है वो इसमें से निकल जाएगा और इसकी जगह पे वाटर में से हाइड्रोजन आ जाएगा. सोडियम आयन अलहदा हो गया और वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा हो गया. अब एसिटिक एसिड यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे विल कंबाइन टू गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वी नो स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. तो इसलिए जो है इस सोल्यूशन की जो पीएच है दैट विल बी द बेसिक. अब ऐसे सॉल्ट जो कि ड्राइव किए गए हैं वीक एसिड और वीक बेस से दे मे नॉट गिव द न्यूट्रल सोल्यूशन. वो न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं देते. अब वो किस टाइप के सोल्यूशन देंगे ये डिपेंड करेगा pKa और pKb वैल्यूज ऑफ द एसिड एंड बेस प्रोड्यूस. ऐसे सॉल्ट्स को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उन प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ पे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे. ये जो है अभी हमने जो टाइप्स ऑफ द सॉल्ट पढ़ी तो इसको जो है वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनता है उसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो वो एसिडिक होगा. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को से जो सॉल्ट बनता है उसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा. और लास्ट जो केस था कि वीक एसिड प्लस वीक बेस जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया तो ये डिपेंड अपॉन दी pKa एंड pKb वैल्यू. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फॉर देम. And in the end, I have given you the comparison of the hydration versus hydrolysis. Hydrolysis is a double decomposition reaction with water as one of the reactants. Hydrolysis में water भी reactant के तौर पे अमल करता है जबकि hydration में water जो है वो उसकी breakdown नहीं होती. Hydration is a chemical process in which water molecules combines with the substance. Water के molecule just attach हो जाते हैं solute के molecules के साथ. Hydrolysis occur with the bond cleavage in the water molecules, जबकि hydration of the organic molecules occur with the bond cleavage, but for the inorganic compound, no cleavage take place. Hydrolysis forms the saturated compounds from the unsaturated compounds and forms the hydrated compounds from the dehydrated compound. ये इनकी applications हैं. That's all about today's topic. Thank you.